So there is nothing limited for. Be aware about it. Either your body or yourself, both are projection of infinite truth, infinite power. Okay? Both are infinite. Due to this, in Veda we are reading, there is only one Brahma. Because Parabrahma appear into form of energy and spirit, both are his own projection. Okay? In Shaiva Siddhanta, Shaiva philosophy, we are reading there was one lingam and big, manifested form, or that split in two parts, and a half become man, a half become woman. Due to this, Shiva is called Ardhanarishwara. Ardhanarishwara means half is women and half is Ishwara. Nari means Divine Mother Goddess, and Ishwara means Parameshwara and Supreme Being. So, Ardhanarishwara is one power, not two power. Okay? And Mother Goddess and Supreme Cause, Supreme Being, both are one, not two. One power is split in two parts. Okay? And nowadays, if you will ask any scientist, he will tell you, every cell, whatever is in your body, that is always split in two parts. Okay? And being perfect. Each part is perfect, not only both are perfect. So, in our philosophy, this supreme cause is Parabrahma, or that appear into two form, energy and spirit, and your life is combination of both. Okay? So one part of your life is called projection of energy, body, and subtle body, causal body, and gross body. And these called three bodies, and projection of energy, and energy is changeable. Due to that, this body is called changeable. Changeable means asata. Okay? But knower of all these bodies, seer of all these bodies, user of all these bodies is one, your real self, and that is unchangeable. Okay? Because you can remember when you were very small boy, then you have seen one incident and you remember in your mind. Not your body is remembering that, not your intellect is remembering that. Because intellect is the projection of energy, and energy is changing always. And those cells who were in your childhood, they are not existing in this state now. Okay? So that part changed. But there is one thing unchangeable, that is yourself. He is remembering through your mind. Okay? So he was, he is, he will be always. When he will leave this body, after that too, he will exist. Due to this, Lord Krishna stated, Vasansi Jaranani Yatha Vihaya, Navani Grihnati Naroparani, Tatha Sarirani Vihaya Jaranananyani Sanyati Navanadehi. As a person living old clothes and wearing new clothes, in the same way, this self always living old body and getting new body. Okay? So physical changes has no meaning for your real self. Okay? That is eternal truth. So, when you meditate, you think about these two causes. When you will be fully aware that body is projection of energy and self is reflection of supreme cause, and I am real self, not body. Body is changeable and I am not changeable. Okay? When you will be fully aware about this truth, this is called Raj Yoga, Jnana Yoga too. So this is Raj Yoga. When you will merge your little I into causal phenomena, cosmic I, when you will merge your little body into cosmic, energy, that is called Laya Yoga. Okay? Merging your individuation into causal, form is called Laya Yoga. Laya means merging. Okay? So there are 4 yogas included in this Mahayoga. If you will follow this, if you will practice this daily, then one day will come in your life when you will achieve highest good. Okay? And I think this is the best way. And it was very, very, mysterious in your process. And yogis were not, disclosing this process. And since so many centuries,
I don't know when this philosophy was, populated among common people. I don't know. But nowadays I thought that I must teach this process for mankind, because in our philosophy there is a restriction. If people are not proper, aspirant, you don't teach it. So where I can go to search aspirant, true aspirant, this is very hard to find out in this era, okay? Very hard to find true aspirant. So I decided that where I can go and search true aspirant, okay? So I am teaching this philosophy and this method. If anybody will be true aspirant and he will catch, she will catch, and they will follow. Otherwise I am doing divine service, okay? And that thing which doesn't possess with any person, relate with any person, that become divine, okay? So my teaching, that part of my teaching will be divine service. If anybody will not accept that, if anybody accept that, that will be human service. So I am doing both services, human service and divine service simultaneously, okay? May God bless you all. May He lead you all from darkness to light, from unreal to real, from death to immortality. This was my teaching in, about your practice, daily practice. Now, I am teaching here Bhagavad Gita, 15th chapter of Bhagavad Gita, related with Purushottam Yoga. I am describing that. Nowadays I am writing commentary on Bhagavad Gita, and I completed 15 chapters, and now 14 chapters. Now I am starting here 15th chapter. So I am, giving my talk on that chapter. So because I am writing commentary, due to this, I will give that talk on Hindi, okay? And you will enjoy. I think that you will enjoy. Those people who are knowing Hindi, they will enjoy more. But those people, okay, like Earl and like Shyam family and others, those who don't know Hindi, they will enjoy by vibration, by sitting, okay? Yeah, that will be more enjoyable too, sometimes. Okay? Now I am going to start my Gita's commentary. Shri Krishna Vande Jagat Guru. Shri Krishna Vande Jagat Guru. Shri Krishna Vande Jagat Guru. Devam Kansacharur Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiret Pranamya Shirasa Devam Marutim Karunakaram करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा सदैव आप सभी के लिए कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल हमारे मिशन के द्वारा एक दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था गोल्फ में, जिसको क्या कहते हैं, फंड रेजिंग डिनर। इसलिए सायंकाल का जो कार्यक्रम था यहाँ गीता प्रवचन का, वो डॉक्टर जया और कोठारी और ये जो उसके यानी प्रबंधक थे, उनके हवाले चला गया। तो ये दिन में यहाँ पर
एक परिवार का मुंडन संस्कार था। एक परिवार माने एक बच्चे का, एक परिवार की तरफ से। तो मैंने यहाँ पर सनातन धर्म के संस्कारों के संबंध में कुछ बातें समझाई थी और लोगों ने काफी उसमें रुचि ली। आज आप लोगों को परसों के पश्चात के श्लोक की व्याख्या सुनने को मिलेगी। परसों मैंने आप लोगों को बताया था, ना रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। पहले मनुष्य को ये विचार कर लेना चाहिए कि ये जगत जैसा दिखाई दे रहा है, ढूंढने पर वैसा नहीं मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखने में जो बात आती है वो वैसी ही नहीं होती। इसकी यथार्थता के विषय में मैंने बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से आप लोगों को समझाया है, उसको दोहराना मैं यहाँ आवश्यक नहीं समझता। और इस जगत का न तो आदि है, न अंत है और न मध्य है। आदि अंत मध्य तब हो जबकि इसका कोई आदि अंत मध्य वाला कारण हो। इसका कारण तो अनंत है, तो अनंत का जो कार्य है वह भी अनंत होगा, वह शांत नहीं हो सकता। इसके विषय मैंने बताया था कि जैसे समुद्र में से लहर जब उठती है तो उस लहर का आदि अंत आप खोज नहीं पाएंगे और न मध्य खोज पाएंगे, क्योंकि लहर समुद्र से है, समुद्र में है, समुद्र में लीन होती है। तो उसका जब आदि खोजेंगे तब भी समुद्र मिलेगा आपको, अंत खोजेंगे तब भी समुद्र मिलेगा, मध्य ढूंढेंगे तब भी समुद्र मिलेगा। तो वहां समुद्र के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने का, लहर में समुद्र के सिवा और कुछ नहीं मिलने का। इसी प्रकार से ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये ब्रह्म की लहर है, ब्रह्म रूपी समुद्र में लहर है। इसलिए खोजने से न तो इसका आदि मिलेगा, न अंत मिलेगा, न मध्य मिलेगा। तो नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठ, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूल। किंतु इस सनातन वृक्ष की जो जड़ें, जो शाखाएं नीचे पहुंच करके जड़ रूप में परिणित हो गई हैं, यानी मनुष्य जीवन में आकर के आसक्ति में बदल गई हैं, ममता और अहंता में बदल गई हैं, इनको बिना काटे, इनको बिना छाटे आप इसके मूल कारण की तरफ नहीं जा सकते, उसका पता नहीं लगा सकते। तो भगवान कहते हैं कि एनम अश्वत्थम सुविरूढ़ मूल, इस संसार वृक्ष की जो जड़ें नीचे फैली हुई हैं, इनको तुम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इनको तुम असंगता अनासक्ति रूपी शस्त्र से दृढ़ता के साथ काट डालो। और काटने के पश्चात फिर क्या करो, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तब तुम इसके पश्चात, तथा माने इसके पश्चात, तत्पदम उस परम पद को परिमार्गितव्यम अन्वेषण करने में लग जाओ, ढूंढने में लग जाओ। परिमार्गितव्यम माने अन्वेषण करना, फिर उसके अन्वेषण में, खोज में तुम प्रवृत्त हो जाओ। तुम्हें प्रवृत्त हो जाना चाहिए। भगवान आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। आदेश और उपदेश में क्या अंतर है? आदेश में होता है इसको करना है, और उपदेश में होता है इसे करना चाहिए। तो भगवान किसी को आदेश नहीं देते, उपदेश देते। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसके पश्चात फिर उस परम पद को खोजना चाहिए। किस परम पद को खोजना चाहिए? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, जहां जाकर के, जहां पहुंच करके पुनः इस संसार प्रवाह में नहीं आना पड़ता, जहां पहुंचने के पश्चात तुम पुनः इस मृतलोक में नहीं आओगे। मृतलोक में सबसे बड़ा दुख जो है वो प्रिय के वियोग का और अप्रिय के संयोग का है। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं। दुनिया के समस्त दुखों को केवल दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग। अब वो प्रिय का वियोग, प्रिय कुछ भी हो सकता है। जिसके लिए प्रिय पुत्र है, पुत्र का वियोग महादुखदायी है। जिसके लिए प्रिय स्त्री है, स्त्री का वियोग महादुखदायी है। जिसके लिए प्रिय धन है, तो धन का वियोग महादुखदायी है। यानी जिसको जो भी प्रिय है
क्या है ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। यानी सबके लिए एक ही चीज प्रिय है ऐसी बात नहीं, सबके लिए एक ही चीज प्रिय है ऐसी बात नहीं। कभी कभी हम समझते हैं कि तुम तो मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हो, लेकिन जिसको हम प्राण प्रिय कहते हैं उसको एक सेकंड में छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, छोड़ देते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता। तो प्राण प्रिय क्यों था भाई? कहा प्राण प्रिय इसलिए था कि वो अपने अनुकूल था। तो अब अप्रिय क्यों हो गया? कहा अब अपने प्रतिकूल हो गया। जो अपने अनुकूल है वही प्रिय है, जो प्रतिकूल है वही अप्रिय है। चाहे जो हो, दुनिया में प्रियता और अप्रियता का मूल स्रोत क्या है? अनुकूलता और अननुकूलता। जो आपके अनुकूल है वो प्रिय है, जो आपके प्रतिकूल है वो अप्रिय है। आपका एक कंसेप्ट है, आपकी एक विचारधारा है, आपकी एक मान्यता है। उस मान्यता के अनुरूप जो जीवन बना रहा है, चला रहा है, वो आपको प्रिय हो जाता है। और यदि उसके विपरीत चलने लगे तो आपको प्रिय हो जाता है वही व्यक्ति अप्रिय हो जाता है। तो प्रियता अप्रियता का मूल आधार क्या बना? अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो योग शास्त्र ने कहा कि नहीं, प्रियता और अप्रियता का आधार केवल अनुकूलता और अननुकूलता है, और कोई दूसरा कारण नहीं। संबंध बोले संबंध नहीं, पुत्र से बड़ा संबंध और किसका हो सकता है? माता और पुत्र से बड़ा संबंध किसका हो सकता है? जरा सोचो। लेकिन पुत्र मां का त्याग कर देता है, मां पुत्र का त्याग कर देती है, मां पुत्र का त्याग कर देती है, और पुत्र मां का त्याग कर देता है। अभी भारत में 2 वर्ष पहले एक घटना घटी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चल रहा था, और उसका विरोध करने वाला था एक वहां का चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम था मुलायम सिंह यादव। उसकी मां, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसकी मां स्वयं लोगों को इकट्ठा करके लखनऊ में उसके कोठी के सामने उसका पुतला जलवाया। उसकी मां ने, मुलायम सिंह की मां ने, और वो वहां पर यह कहा लोगों के सामने कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरे कोख से मेरे किसी पाप का परिणाम राक्षस पैदा हुआ है, इसलिए इसका पुतला मेरे सामने जलाया जाए। क्या कह गया? प्रियता और अप्रियता। और वो कहती थी कि मैं इसको बड़े देवता पितर मना करके पाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये देवता के द्वारा राक्षस पैदा हो जाएगा। ये उसकी मां के वाक्य है। तो दुनिया में प्रियता और अप्रियता का मापदंड क्या है? अपनी अनुकूलता और अपनी प्रतिकूलता, अपने विश्वास, अपने आचार, अपने विचार, अपने यानी मान्यता के विपरीत जिसका आचरण है वो अपने प्रतिकूल हो जाता है, उसके अनुकूल जिसका आचरण है वो अपने प्रिय हो जाता है। तो प्रिय और अप्रिय में मन की व बुद्धि की, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जीवन मन के प्रकाश में देख रहा है या बुद्धि के प्रकाश में देख रहा है या आत्मा के प्रकाश में देख रहा है। यदि आत्मा के प्रकाश में देख रहा है तो उस अवस्था में भी अनुकूलता और प्रतिकूलता हो जाती है। हमारे जो परमाचार्य हुए हैं उनका नाम था स्वामी रामानंदाचार्य। उनके बड़े प्रिय शिष्य थे, बड़े प्रिय शिष्य। उन्होंने अपने शिष्य को नित्य प्रति बारी बारी से भिक्षा के लिए भेजा करते थे अपने शिष्यों को। तो एक शिष्य उनका भिक्षा के लिए गया। उन्होंने कुछ नियम बनाए थे कि इन घरों से भिक्षा नहीं लेना, इन घरों से भिक्षा नहीं लेना चाहिए। ये नियम थे, हमारे यहाँ शास्त्र में नियम बनाए गए हैं कि इन घरों का अन्न नहीं खाना चाहिए, वकील का अन्न नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर का अन्न नहीं खाना चाहिए, पुरोहित का अन्न नहीं खाना चाहिए, हाँ, और क्या बोलते हैं, राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। पुरोहित जो ब्राह्मण होता है, पुरोहिती करता है, उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। उसी क्रम में एक क्रम है, स्वर्णकार के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। अपने यहाँ कहावत है ना कि स्वर्णकार अपनी मां को भी नहीं बख्शता, यदि वो भी सोना दे दे तो उसमें थोड़ा निकाल लेगा, वो उसकी वृत्ति बनी हुई होती है। तो अब वो उनका शिष्य चला गया, एक स्वर्णकार बड़ा भक्त था, वो उसके पीछे लग गया कि मेरे यहां से आप भिक्षा लेना। तो वो
चुटकी लेते थे। चुटकी जानते हो ना, आटे की एक चुटकी ऐसे हाथ मोड़ करके आपकी मुट्ठी में जितना आटा आ जाए वो दे दो, उसको चुटकी कहते हैं। वो चला गया, उसके यहां से ले आया, भोजन बना। भोजन जब परसा गया और जो आचार्य रामानंद ने ग्रास उठाया और ग्रास ला करके ऐसे किया तो ये रुक गया उनका हाथ। उन्होंने पूछा उस शिष्य से, क्यों बेटे, आज कहां से तू अन्न ले आया है? कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा है। कहा नहीं, मेरी आज्ञा के विपरीत तूने काम किया है। कहा नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं। कहा देखो तूने डबल पाप किया, एक तो पहले मेरी आज्ञा नहीं मानी और अब मेरे से झूठ बोल रहा है। तो गुरु से झूठ बोलने के समान दुनिया में और कोई पाप नहीं है, ये शास्त्र का कथन है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी यही बात लिखी है। झूठ बोलने से बड़ा और कोई पाप दुनिया में नहीं। हर एक पाप माफ हो सकता है भगवान के विधान, लेकिन गुरु से मिथ्या भाषण का पाप हमारे यहां शास्त्रों में उसे अमिट बताया गया है। उसके लिए कहीं दूसरा स्थान नहीं, क्योंकि राखे गुरु जो कोप विधाता, और यदि वही पाप शुरू हो गया तो फिर कहां जाएगा। तो आचार्य ने कहा कि बेटे तूने अब ये दूसरा पाप किया, एक तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और दूसरा मेरे से झूठ बोल रहा है तू। सच सच बता, क्योंकि ये अन्न मेरे यानी श्वास के सामने आते ही इसमें से बू आ रही है, और ये जो बू आ रही है ये शुद्ध अन्न में से नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने रख दिया। अब वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, गुरुदेव क्षमा कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हुई? तो बताया कि मैं अमुक के घर से भिक्षा ले आया, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर अब तुम क्या चाहते हो मेरे से? यदि तुम पहले गलती किए थे उसको स्वीकार कर लेते तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, और अभी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, न तुम्हें कोई श्राप दूंगा, न तुम्हें कोई अपशब्द कहूंगा, लेकिन इसके बदले में आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं और दूसरा कोई दंड नहीं है। आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। इतना कह करके गुरुजी उठ दिए। अब वो शिष्य उठा, विचार करने लगा। अब यदि सामान्य कोई शिष्य होता सोचता कि त्याग दिया तो बड़ा अच्छा हुआ, हम चलो दूसरे जगह वही काम करें, हम कोई कम महात्मा थोड़ी, हम भी बड़े महात्मा हैं। लेकिन वो शिष्य सोचने लगा कि गुरु ने त्याग कर दिया तो मेरे जीवन का प्रयोजन क्या रहा? कोई प्रयोजन नहीं रहा। गुरु के द्वारा त्यागा हुआ न तो लोक में जगह है न परलोक में जगह है, तो क्या करूंगा मैं जी करके? वो जाकर गंगा जी में छलांग मार दिया और वहां शरीर छूट गया उसका। अब छोड़ तो दिया शरीर, लेकिन अब उस अपराध के बदले में उसका जन्म हुआ 10वें महीने उसी बनारस में एक चर्मकार के घर, चमार के यहाँ। चमार तो आप लोग जानते हो, भारत में एक जाति होती है जो पशुओं के खाल उधाड़ने का काम करती है, मरे हुए पशुओं के। उसके घर में पैदा हुआ। पैदा तो हो गया लेकिन उसे पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। अब पैदा तो हो गया लेकिन वो दूध न पिए माँ का। अब माँ का दूध न पिए तो बच्चा कितने दिन तक जिएगा? अब उस चमार के घर में तो बड़ी चिंता हो गई कि बच्चा पैदा हुआ लेकिन दूध नहीं पीता। लेकिन गुरुजी बैठे हुए थे ध्यान में, उनको पता चल गया कि वो तो वहां पैदा हो गया और दूध नहीं पी रहा है तो मर जाएगा। गुरुजी को दया आ गई, फिर आखिर तो गुरु गुरु होता है। वो उठे वहां से, खड़ा वो पानी और चल दिए, पहुंच गए उस चमार के दरवाजे पर। उसने देखा कि भगवान रामानंदाचार्य, उस समय तो उनको लोग भगवान मानते थे, भगवान रामानंदाचार्य यहाँ पधारे हुए। प्रभु चरणों में आकर गिर गया। कहा भाई भगत जी तेरे घर लड़का पैदा हुआ है। कहा हुआ तो है भगवान, लेकिन वो 3 दिन हो गए दूध नहीं पीता। कहा उसको मेरे पास ले आ। वो लड़के को गोद में लेकर वो चमारनी बाहर निकली तो भगवान को देखते ही वो बच्चा रोने लगा। पहचान गया गुरु को, रोने लगा तो उनको भी आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब क्यों रो रहा है? तो रो मत, जब तू 5 वर्ष का हो जाएगा तो 5 वर्ष तक के बालक के लिए कोई छुआछूत नहीं होता, कोई पवित्र नहीं होता, कोई अपवित्र नहीं होता। 5 वर्ष के बाद फिर तू मेरे पास आ जाएगा रोने।
तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम दूध पियो, ये तुम्हारी माँ है। तो बच्चा दूध पीने लगा माँ का, और वो लौट कर चले आए। तो 5 वर्ष की आयु जब हुई तो वो उससे कहा कि भाई इस बच्चे को तुम मेरे यहाँ रोज लाया करो सत्संग में। तो उसका बाप उसे गोद में लेकर के सत्संग में जाया करता था। जब 5 वर्ष का बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ तैसे उसके पूर्व संस्कार थे, स्मृति बहुत थी, वो बच्चा जाकर के संत रविदास बना। नाम सुना है आप लोगों ने? भारत के संत रविदास की जीवन कहानी है। तो भारत में संत रविदास नाम का वो महापुरुष हुए, जिसकी कहानी मैं सुना रहा था आपको। तो मेरे कहने का प्राय कि प्रियता और अप्रियता ये दोनों में भी अंतर होता है। कोई व्यक्ति किस स्तर पर है, उसके लिए किस प्रकार की मनोवृत्ति है, किस लिए व्यक्ति प्रिय लगेगा, किस लिए अप्रिय लग जाएगा। प्रियता अप्रियता में भी अंतर है, लेकिन है सारा अनुकूलता प्रतिकूलता में भी अंतर है। अनुकूल क्यों बना, प्रतिकूल क्यों बन गया? तो हर एक के लिए एक कानून नहीं है, एक नियम नहीं है, एक क्राइटेरियन नहीं कि उससे आप नाप लो कि भाई इस क्राइटेरियन के नाते ये प्रतिकूल हो गया इसलिए ये भी प्रतिकूल हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी स्त्री को इसलिए त्याग देता है कि वो व्यभिचारिणी है, कोई व्यक्ति अपनी स्त्री को इसलिए त्याग देता है कि उसकी बात नहीं मानती, कोई व्यक्ति अपनी स्त्री का त्याग इसलिए कर देता है कि जैसा वो चाहता है वैसा नहीं करती। आप क्या समझे? एक घटना मेरे सामने आई ऐसी। एक व्यक्ति था, उसकी स्त्री मेरे पास आई। ये कथा की बात नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूं। और अब उसको त्यागने के लिए वो तैयार था और मारता था वो। उसकी स्त्री मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि बेटे बात क्या है, सही बताओ। उसने कहा कि स्वामी जी मैं आपको सही बता रही थी। क्यों नहीं बता सकती, बात क्या है? मैं आपको क्या बताऊं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। उसने कहा कि ये मेरे से वेश्यावृत्ति कराना चाहता है और मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी, ये मार डाले मुझे। आप सोचिए, एक व्यक्ति स्त्री का त्याग इसलिए करता है कि उसकी स्त्री व्यभिचारिणी है, और एक व्यक्ति इसलिए उसका त्याग करने के लिए तैयार है कि वो व्यभिचारिणी नहीं बन रही है। तो क्राइटेरियन क्या हो गया? तो इस प्रकार से अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी अंतर है। एक व्यक्ति धन के नाते किसी से संबंध रखता है, एक वृद्धि तन के नाते संबंध रखता है, एक मन के नाते रखता है, एक उसकी आत्मा के नाते रखता है। और यदि किसी क्रिया से आत्मा का पतन होता है तो वो क्या करेगा? जिसको जिससे संबंध है उसके पतन की उसे चिंता होती है। धन के नाते संबंध है तो धन के पतन की चिंता होती है, तन के नाते संबंध है तो तन के पतन से चिंता होती है, मन के नाते संबंध है तो जाति के पतन से चिंता होती है, आत्मा के नाते संबंध है तो आत्मा पतन से उसको चिंता होती है। तो जिसके नाते जिसका संबंध है उसके प्रतिकूल यदि कोई आचरण करता है तो उसे दुख होता है, और वहां पर अनुकूलता और प्रतिकूलता का यानी भाव उदय हो जाता है। तो इसलिए ये शास्त्र में बात बताई गई कि दुनिया में जितने दुख और सुख है ये सब अनुकूलता और प्रतिकूलता से संबंधित है, और अनुकूलता और प्रतिकूलता की कहानी व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व से संबंधित है। उसका व्यक्तित्व कहां पर है, किस अवस्था में वो खड़ा हुआ है, वहीं से उसके अनुकूलता प्रतिकूलता की कहानी चलती है। और समाज या दुनिया या अदर लोग उसको अपने ढंग से लेते हैं। लेकिन यहां पर भगवान ने बताया कि ये संसार जो है, ये संसार केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता के दुख का साम्राज्य है। यहां सब कुछ अनुकूल नहीं हो सकता और सब कुछ प्रतिकूल नहीं होगा। तुम्हारे न चाहे पर अनुकूल का वियोग हो जाएगा और तुम्हारे न चाहते हुए भी प्रतिकूल का समागम हो जाएगा। फिर क्या करोगे तुम? सारा तुम्हारी चाहना के अनुसार ही हो, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा तो नहीं होता। इसलिए जब अनुकूलता और प्रतिकूलता से तुम्हें पीड़ा होगी तब तुम क्या करोगे? तो ऐसा काम करो जिससे इस पीड़ा में संसार में दोबारा आना ही न पड़े। व्यक्ति ने जन्म से लेकर और पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बच्चे को बड़ा किया, अब वो कहता है बेटा तुम ऐसे करो, बच्चा कहता नहीं। तुम कौन होते हो? हमारी अकल नहीं है क्या हमारे साथ? वो कहता है बेटी से लड़की तुम ऐसे करो, कहते तुम कौन होते हो? तुम्हें पता नहीं कि अब मैं 16-18 साल की हो गई हूं, हमारा भी अधिकार है कुछ। अब वो जो जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक उसने जो खुशामद और सेवा और शुश्रूषा की, उसका परिणाम क्या निकला उसके हाथ में? कुछ नहीं।
वो चाहता है कि ये हो, क्या वो कभी अहित चाहेगा? कोई माता पिता अपने बच्चों का हित नहीं चाहते, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि माँ बाप जो कर रहे हैं इनके कहने में क्यों चलूं, मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना हित है, मैं अपने हित को जानता हूं या जानती हूं। अब जब व्यक्ति अपने हित और अहित का स्वयं जिम्मेदार हो जाए और माँ बाप सोचे कि नहीं इसका हित नहीं मैं ज्यादा जानता हूं, तो वहां पर संघर्ष